Guys, welcome back to Zeta Institute of Science, and I am back with a new chapter of chemistry. Now we are going to start with the chapter Elements of Group 16, 17 and 18. So before starting with the chapter, we will just have a quick recap कि what actually is periodic table. Means periodic table का क्लासिफिकेशन या फिर ग्रुप्स कैसे डिवाइड है उस बेसिस को हम शॉर्टकट में स्टिक करेंगे. ओके, सो दिस डायग्राम इज एक्चुअली द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, आई एम डिस्प्लेइंग यू over here. So this modern periodic table overall is divided into certain blocks and certain types of groups. So total altogether this modern periodic table is having 18 groups on it. Okay, how many groups? 18 groups. ठीक है, फिर इस 18 groups में भी classification है that is named as blocks like S block, D block, P block and F block. So what is F block? This lower portion is F block, which is also called as lanthanides and austenites block. Okay, then we have S block over here. Means we have only two blocks coming in this S term. Which one is this part of the whole modern periodic table? कुछ ऐसा है आपका periodic table. ये जो part है वो है आपका S block. P block is this portion. This all over portion is P block. This was of S block. This central part is called as D block. Why they are known as S block, D block, P block and F block? Any clue? I think you should know this because you have already studied the basic of few of the groups in standard level. If not, just make sure that to hear my words. So basically S, P, D, F. Why we have named such types of elements or few elements as this block only? Because the last electron of that element is entering the shell among this. तो अगर last electron आपके shell का S block में enter कर रहा, that means the element belongs to S block or that element is of S block. Same for D, P and F. अगर last electron उस shell में जा रहा, that time we say that this element is belonging to this block. So basically today in this lecture or from now we are going to study about 16, 17 and 18 group, right? So this 16, 17 and 18 group is coming under P block element. Okay, this 16, 17 and 18 element group actually is divided as three types. Group 16 is called as oxygen family. Group 17 is called as halogen family and group 18 is called as noble gas family. Okay, so ये तीनों last group है हमारी modern periodic table के, which is coming under P blocks element. Now P block में भी आते हैं, उसमें भी types है. Now what if talking only about the 16 group, that is oxygen family, that time the last electron enters P block as P5. ओके, सो 16 ग्रुप में ये P ब्लॉक एलिमेंट्स तो है, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कौन कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं दैट वैरीज. सो फॉर 16 ग्रुप, दैट इज ग्रुप 16, वी हैव P5. दैट मींस ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एलिमेंट इज एंटरिंग इन P ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक. ओके, फॉर 17 P इज इक्वल्स टू 6. Sorry, for 16 it is 4 and for this it is 5. Okay, क्योंकि P की last जो valency होती है means the capacity of holding electrons of P element is only 6. It can only have 6 electrons in it. So 16th group is having 4 electrons in the P shell. That's why it is coming under P block element. This 17th group is having P5. That means it is having 5 electrons in the P shell. Okay, and for 18 group it is P6. That means the whole valency over here is completed. So basically in today's lecture we are going to study few of the elements of 16, 17, 18 groups. What actually are the members of this group? We will study them, their properties, their occurrence,
maybe we have some electronic configuration, we have some other means like how they are used in our day to day life, कोई प्रोडक्ट है क्या जिसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है. मीन्स ओवरऑल हम ये चैप्टर में ये तीनों पार्ट्स को स्टडी करें. स्टूडेंट्स, इफ आप लोगों को बाकी ब्लॉक्स रेफर करने हैं, दैट मीन्स टिल 1 to 15 ग्रुप एलिमेंट स्टडी करना है एंड आप लोगों का वो स्टडी पेंडिंग है, यू कैन गेट दैट वीडियो फ्रॉम आवर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस चैनल इटसेल्फ. ओके, तो आप हमारे चैनल में केमिस्ट्री सेक्शन में जाके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसे करके अलग अलग नेमिंग जो टेक्स्ट बुक नेमिंग है उस वाइज भी आप उसको सर्च कर सकते. टू रिफर few other elements of S blocks, D block, P block and F block, you can refer our channel. And if you are a new watcher over here, then please do subscribe the channel. Okay? Now we will be moving forward and checking with group 16 elements only. Then we will cover with 17 group and 18 group later on. So first we are only concerned about 16 group element. That means we will check with what is the very first element of this group. We will check how many members are there and what are the names of the members. What are their properties? What is their ionization enthalpy? So हम ये चीजें डिफरेंट स्टडी नहीं करेंगे कि पहले सारी चीजें ओवरऑल स्टडी कर लें उसके बाद सेपरेट करें. नो, वी आर गोइंग टू स्टडी देम सेपरेटली ओनली. मैं 16 ग्रुप सेपरेट सिखाने वाली हूँ, 17 सेपरेट एंड 18 सेपरेट, सो दैट आप लोगों को लोकेट करने में इजी हो. तो वाइल नोटिंग और मेकिंग नोट्स यू कैन डू वन थिंग. इफ आप लोगों को कंबाइंड स्टडी करना है विद कंपैरिजन, यू कैन डू वन थिंग. नाउ henceforth I am as teaching 16 group only. You can divide your page like this, like 3 parts from your page. Already you have a margin over here and over here. That doesn't matter. You can name one block as 16, one as 17 and one at 18. So जो भी 16 के पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिख सकते हो, 17 के इसमें एंड 18 के इसमें. ऐसे नहीं करना तो डिफरेंट पेजेस पे ग्रुप 16 ओवरऑल लिखो, हेडिंग पूरा 16 के बारे में इंफॉर्मेशन लिखो, फिर 17 के बारे में इंफॉर्मेशन लिखो एंड फिर 18 के बारे. दोनों चॉइस है. स्टूडेंट्स, यू हैव बोथ द चॉइसेस टू डू, बट कंपैरेटिव स्टडी मींस कंपेयर करके स्टडी करना विल बी द बेस्ट थिंग. ओके, आप कंपेयर करके स्टडीज करो. समवेयर इन बिटवीन ऑल्सो आई विल हेल्प यू हाउ टू कंपेयर. कौन सी चीजें डिफरेंट है, क्या है, वो मैं खुद बता दूंगी आप लोगों को. ओके, सो आई डोंट थिंक सो यू शुड नोट डाउन दिस. और क्योंकि ये आप लोगों के सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था कि व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी एंड व्हाट block elements we are actually going to study. Okay, let's continue with group 16. So this group 16 elements are also called as oxygen family or chalcogens. Why oxygen family? Because the very first element of group 16 is oxygen. Okay, this comes under P block element as we were discussing कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे प्लेसमेंट है. तो इस वाइज प्लेसमेंट की वाइज चेक किया जाए तो ये पी ब्लॉक में आता है. इसका इलेक्ट्रॉन, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो पी शेल में एंटर करता है एंड विथ हैविंग P4 एज द वैलेंसी. सो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी 4 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट के पेंडिंग होंगे उनके नंबरिंग के वाइज वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, पी ब्लॉक में. जब वो पी सब शेल में एंटर कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर एंटरिंग पी ब्लॉक. सो दैट्स द रीजन दे आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, तो मैं अभी यही आप लोगों को थोड़ी देर पहले एज अ इंट्रोडक्शन बता रही थी. Talking about the members of group 16 elements, so we have oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium as the members of group 16 elements. Okay, so oxygen is the head of this family. That's the reason we have written the whole group 16 as oxygen family. Okay, so oxygen की बात की जाए तो उसका atomic number is 8. The last electron enters 2p4. मैंने सामने जो शॉर्टकट्स में शेल लिखा दैट इज टेलिंग अस दैट कि ये लोग इस नंबर वाले इस पी शेल में एंटर कर रहे हैं, नॉट इन 2p1 3p1. तो अगर आप चेक करोगे तो ग्रेजुअली एक सब शेल इंक्रीज हो. अगर ऑक्सीजन 2 वाले p4 में गया है तो सल्फर इज एंट्रिंग इन 3p4 एंड सेलेनियम इन 4p4, टेलिरियम as 5p4 and polonium as 6p4. Okay, so these are the members of group 16 elements or the oxygen family. ठीक है, तो ये जो members हैं इसमें जो head है, who is the head? over here the head is oxygen. So जो oxygen की properties है वो थोड़ी बहुत different होगी.
बाकी कंपैरेटिव है। सो अगर बात की जाए सिर्फ ऑक्सीजन एंड सल्फर की, तो ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ दिस आर नॉन मेटल्स, ठीक है, दे आर नॉन मेटल्स, ओके, इनके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होगी। वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट सिलीनियम एंड टेरिलियम, दिस टू आर मेटल ग्रुप्स having properties of metal, ज्यादा, ठीक है, and this polonium is exactly the radioactive element as well as metal. So ये metal है, but which kind of metal polonium is? This polonium is a radioactive metal, okay? That means it is having some of the radiation. अब अगर बात की जाए ग्रुप 16, 17 एंड 18 की, तो हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनका प्लेसमेंट कैसा है, राइट? तो जस्ट फर्स्ट आप ये नोट डाउन कर लो कि कितने मेंबर्स हैं, क्या है, कैसे है। नाउ विल चेक कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, मैंने आप लोगों को बताया कि दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लुक्स लाइक दिस। मैं सिर्फ अपर स्ट्रक्चर बता रही हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहाँ पे आते हैं, जो हम मेंबर्स को डील करें 16, 17, 18 is the last one, and then we have 16 and 17 before. So what the 16 and 17 are trying to do is, ये लोग वैलेंसी ऐसे कंप्लीट करने का ट्राई करें कि 18 ग्रुप जो उनके नियरेस्ट नोबल गैस है, मीन्स अगर आप कोई भी एलिमेंट के रो की बात करो, सपोज ये अलाइनमेंट है, तो जब ये अलाइनमेंट में जब रोज जा रही है, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन 18 ग्रुप है हमारा, वो एक्चुअली दिस 18 ग्रुप इज टोटली फुलफिल्ड, इनके सारी वैल्यूज कंप्लीट है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो दूसरे शेल में गया, तो प्रॉपर वैलेंसी कंप्लीट है इसकी, ओके। तो व्हाट एक्चुअली दिस पीपल डू बिफोर दिस 18 ग्रुप, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो अपने नजदीक वाले नोबल गैस की तरह बिहेव करने का, या फिर अपने नजदीक के जो नोबल गैसेस है उसकी तरह अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने का ट्राई करें। नाउ दिस ऑक्सीजन इज ट्राइंग टू बी कमिंग एज हीलियम, ठीक है। हम ये ग्रुप 18 का जो एलिमेंट्स चेक करेंगे आप, तो आपको समझेगा कि ये एलिमेंट्स किसके कंपैरेटिव में स्टडी हो रहे हैं, या फिर किस हिसाब से अपना वैलेंसी कंप्लीट करने का ट्राई करें। सो अलॉन्ग विद दिस कंसेप्ट दैट कि इनको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, ग्रुप 16 को चाल्कोजेंस भी नाम है, ब्लॉक पी में आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी शेल में एंटर होता है एज नेमिंग एज P4, दैट मीन्स ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इन द पी शेल, 4 लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसके मेंबर्स क्या है, कौन कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम। व्हाट आर द सिंबल्स फॉर देम? फिर अगर बात की जाए तो उनका एटॉमिक नंबर क्या है, वो कौन से पी शेल में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने अगर देखोगे तो शॉर्टकट में लिखा है, इसके पहले भी तो बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन है, बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। तो आई जस्ट वांट यू ऑल, जब आप स्टडी करो साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक एलिमेंट का लिख के लेना। सो व्हाइल नोटिंग दिस, मेक अ सेपरेट कॉलम as your homework part, you will be doing this today. आप एक सेपरेट और कॉलम बना लो ये चीज एंटर करने के बाद, एंड देयर यू विल बी राइटिंग द होल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दैट एलिमेंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होल क्यों बोल रहे हो? बिकॉज वी कैन इवन राइट कंडेंस वन, शॉर्टकट मार सकते हैं, बट हमें शॉर्टकट नहीं यहाँ पे यूज होने वाला है। वी नीड एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो स्टूडेंट्स, एज अ होमवर्क यू विल बी मेंशनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ओके। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात हो गई, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी। अब अगर हम इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात की जाए, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन्स MP एंड BP, इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटम। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये समझना कैसे, मतलब दिस, अगर टेबल में बात की जाए तो ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे ये लोग नीचे की तरफ जाएंगे। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा उस एलिमेंट, ओके। सो जस्ट कीप दिस थिंग ऑल्सो इन माइंड, और यू कैन नोट दिस दैट, ये स्टेटमेंट आप लोग लिख के ले लो, दैट the atomic number and the, so okay, you can note down it like this: melting and boiling point is directly proportional to the atomic number. That means as melting and as the atomic number increases, melting and boiling point also increases, okay। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आप चेक करोगे हमारे ग्रुप का, तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, एंड इवन द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो गेट्स इंक्रीजेस, ओके। ये सारे
चीजें हमें एलोट्रॉप्स की तरह भी मिल जाती है। ओके, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज हाईएस्ट, दिस ऑक्सीजन इज हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन इट। फिर उसके बाद के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, फिर अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की जाए, मीन्स इलेक्ट्रॉन अपने साइड लेने की बात की जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड कवर करने की बात की जाए, तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे जाएंगे, मीन्स इन दिस डायरेक्शन, दैट टाइम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। दैट मीन्स increase of atomic number decreases the electronegativity of that element. Okay, ये भी चीज आप ध्यान में रखो। स्टूडेंट्स, जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, ट्राई टू नोट डाउन इन योर बुक्स दैट यू कैन रिकलेक्ट एवरीथिंग व्हाइल द लेक्चर ओनली। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जाए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी increases with increase of atomic number. That means atomic number जैसे जैसे increase हो रहा है, हमारा ionization enthalpy भी increase हो रहा है। That means we have two things, atomic and ionic radii भी नीचे जैसे जैसे जाएंगे, जैसे जैसे atomic numbers बढ़ेंगे वैसे वैसे ionic radius बढ़ेगा, मीन्स उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें भी उसके चेंजेस आएंगे। That means as the atomic number increases, ionization enthalpy increases, melting and boiling point increases, as well as the ionic radius also increases. These three is directly proportional to which concept? Atomic number. अगर atomic number के साथ कोई inverse relation show कर रहा है, that is electron gain enthalpy. What it is saying that कि जैसे जैसे हमारा atomic number बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो electron gain enthalpy है वो reduce हो जाएगा। ओके, तो noting down as like कि क्या प्रोपोर्शनल है क्या नहीं, वो मैं आपको शो करती हूँ, तो साइमल्टेनियसली आप नोट कर लो क्योंकि वो चीज मैंने ऑलरेडी बोल दी। जस्ट नोट डाउन विद दिस। Ionization enthalpy also increases, atomic radii also increases, melting and boiling point also increases, electron gain enthalpy decreases simultaneously. Okay, so ये increase नहीं होता है, ये क्या होता है, decrease होता है। Okay, और ये atomic number कैसे increase होता है हमारे टेबल में? Atomic number increases when we go down. Okay, तो अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है हमारा ऐसा, उसमें इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये सारी कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में नहीं बता रही हूं मैं इस डायरेक्शन में बोल रही हूँ। इस डायरेक्शन में जाते वक्त ये सारी चीजें होती। So just note it down and keep this thing in mind that atomic number increases when we go down. उस टाइम की बातें हमने की, क्योंकि atomic number also increases from this side also, that is from left to right. ठीक है, दो कंसेप्ट होता है, एक लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है या तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। तो वी आर जस्ट कंसिडरिंग टॉप टू बॉटम। ओके, हम टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम में सिनेरियो कुछ ऐसा होता है। ओके, सो जस्ट नोट डाउन दिस the properties what actually happens in this oxygen family. Okay, now we will talk about something behaviors, means हम उस एक एक नंबर के बारे में पता करेंगे कि उनका एक्चुअल बिहेवियर कैसा। सो वी हैव सम a term called as amorphous. This what actually means is different. This word tells us that having different characters. Resident family, अगर एक फैमिली है आपके पास, here we are having oxygen family with members 6. Okay, 6 members है हमारे पास। इस 6 members में से one of the member, at least one of the member is showing some properties or something which is totally different. Okay, so in 10 members में से one member we have called as oxygen, the head of the family, is showing some different properties and characters. Okay, कौन से different properties and characters show कर रहा है ये बाकी elements जो इसके group members हैं, 6 members में से जो है उन 6 members में से this oxygen is having some different properties, some different criteria for the reaction, some different
क्वालिटी, इसका जो नेचर है वो टोटली डिफरेंट है। तो अगर ऑक्सीजन का नेचर पूरा डिफरेंट है तो वी आर ओनली पेंडेंट विद 5 मेंबर्स। तो 5 मेंबर्स ऐसे हैं जिसका जो है प्रॉपर्टीज वगैरह कैरेक्टर्स वगैरह टोटली सेम। जो एक मेंबर है विच वन, द हेड ऑफ द फैमिली, जिसके नाम से ये फैमिली ऑक्सीजन फैमिली, दैट ऑक्सीजन is having some different properties, have some different properties for reactions, some different extra qualities in it. Okay, so we are going to study about the anomalous behavior of oxygen. Okay, that means some different behaviors, some different characters of oxygen. Okay, checking with the anomalous behavior of oxygen. So मैंने जैसे अभी बोला कि 6 मेंबर्स में से दिस हेड इज शोइंग सम डिफरेंट प्रॉपर्टी, तो बाकी 5 मेंबर्स की प्रॉपर्टी सेम है। तो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट दी एनोमलियस बिहेवियर, एटॉमिसिटी। तो ये जो एटॉमिसिटी होती है, दिस ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। बाकी के जो एलिमेंट्स है मींस हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं एनोमलियस बिहेवियर, तो वी आर टेकिंग कि वो 5 मेंबर्स आर इन वन ग्रुप एंड दिस ऑक्सीजन इज हैविंग अ डिफरेंट ग्रुप। ओके, तो ये 6 ग्रुप्स है। तो व्हाट एक्चुअली एटॉमिसिटी मींस, दिस ऑक्सीजन इज डायमॉलिक्यूल, राइट? यू ऑल नो दैट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द नेचर एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। दिस डाई ऑक्सीजन करके रहता है, जैसे डाई हाइड्रोजन होता है वैसे। तो दिस एटॉमिसिटी मींस कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने खुद के पैर के साथ। तो ऑक्सीजन ऑलवेज प्रिफर टू बी अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, सिर्फ खुद का एक और पार्टनर लेगा और कोई एक्स्ट्रा पार्टनर नहीं लेगा। बट अगर बाकी मेंबर्स की बात की जाए तो दे आर टेट्रा एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक और ऑक्टा एटॉमिक। ठीक है, मींस अगर हम कोई दूसरा एलिमेंट लें, सपोज टेकिंग पोलोनियम, तो दिस पोलोनियम प्रिफर्स टू बी एज P4। दैट मींस जो 6 मेंबर्स है उसमें से एक मेंबर ने चूज किया डायटोमिक प्रॉपर्टी, बाकी के जो 5 मेंबर्स है या तो वो पेयर बनाते ही नहीं है, या तो पेयर बनाने के बाद व्हाट दे डू इज दे ऑलवेज प्रिफर टू बी मोर देन 2। वो 2 नहीं रह सकते, वो डाई बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो बाकी जो मेंबर्स है वो मोर देन डायटोमिक बने, बट ऑक्सीजन ऑलवेज प्रिफर टू बी डायटोमिक। रेयर केस होता है जब ओजोन फॉर्मेशन होता है तब वो O3 बनता है, बाकी वो डायटोमिक ही रहता है। ओके, CO2 O2 comes ना in with carbon and form CO2। ठीक है, सो एटॉमिसिटी मींस कितने एटम्स खुद के साथ पेयर करता है। ऑक्सीजन ऑलवेज प्रेफर टू बी डायटोमिक एंड रेस्ट प्रेफर टू बी मोर देन डायटोमिक। इतना याद। अगर आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करोगे तो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। व्हाट इट इज इन पैरामैग्नेटिक नेचर है इसका, बट बाकी के जो 5 मेंबर्स बच रहे हैं वो लोग डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेफर करते हैं। तो रेस्ट मेंबर्स आर डायमैग्नेटिक। ओके, रेस्ट 5। ओके, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कौन सा मैग्नेट फॉर्म करता है? पैरामैग्नेट फॉर्म करता है। कौन फॉर्म करता है? ऑक्सीजन। बट दिस इज फॉर रेस्ट मेंबर्स, मतलब बाकी के 5 मेंबर्स क्या प्रेफर करेंगे? डायमैग्नेटिक रहने का। ओके, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो ऑक्सीजन ऑलवेज शो -2, -1, +2 एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। अपना ऑक्सीडेशन स्टेट ये प्रेफर करता है वो, बट बाकी के जो एलिमेंट्स है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -2, +4, +6। तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट होता है। व्हाई इट इज डिफरेंट? बिकॉज it is having some different properties, different characters. That characters are called as anomalous behavior of oxygen. Okay? ऑक्सीजन का एक प्रॉपर्टी ऐसा है कि बाकी के जो एलिमेंट्स है मींस रेस्ट 5 मेंबर्स आर शोइंग दिस प्रॉपर्टी, बट ऑक्सीजन कुछ भी कर लो, इसके अलावा दूसरा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर सकता, उसके पास वो कैपेबिलिटी है ही नहीं, ऐसे भी आप बोल सकते हो। So oxygen cannot exhibit higher oxidation state. It can only afford to be as -2, -1 or +2 as the oxidation state. Okay? क्यों ये ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? बिकॉज इसमें वैलेंसी ऑर्बिटल्स वैकेंट d ऑर्बिटल्स जो होते हैं नहीं प्रेजेंट होते ऑक्सीजन में। इसकी वजह से क्या होता है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। बाकी के जो 5 मेंबर्स हैं उनके पास ये वैकेंसी ऑर्बिटल
होता है प्रेजेंट. ओके, दिस ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन देम, बट फॉर इन केस ऑफ ऑक्सीजन इट इज एब्सेंस. दैट्स द रीजन वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता. अगर हाइड्रेट्स का नेचर पूछा था तो दिस हाइड्रेट ऑफ ऑक्सीजन क्या है? H2. ओके, रूम टेम्परेचर पे H2O है विच इज लिक्विड. वाटर इज ऑलवेज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. दिस यू शुड नो, राइट? एंड बाकी के जो मेंबर्स हैं रूम टेम्परेचर पे gaseous भी. This is in liquid form, but rest members are gaseous. Okay, so this is the reason why we say that oxygen is having some other different properties. अगर कोवैलेंसी की बात की जाए तो ऑक्सीजन इज हैविंग कोवैलेंसी ओनली टू. हमेशा अगर ऑक्सीजन की कोवैलेंसी चेक करनी हो तो इट इज कॉमन दैट इट इज हैविंग टू कॉमन वैलेंसी. ओके, बट बाकी के केसेस में क्या होता है, वो कोवैलेंसी 4 हो जाती है. ठीक है, तो कोवैलेंसी की टर्म में ऑक्सीजन इज हैविंग ओनली 2 as a covalency, but rest members are having 4 covalency. Okay, and इसका बिहेवियर ऐसा क्यों? मतलब ये तो इसका डिफरेंट बिहेवियर हो गया रेस्ट मेंबर, बट ये बिहेवियर है क्यों? दिस बिहेवियर इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज. एटम का साइज छोटा होने की वजह से और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, एंड द मेजर रीजन एब्सेंस ऑफ दिस ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स. इसकी एब्सेंस की वजह से ऑक्सीजन इज शोइंग टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज. बाकी के मेंबर्स में ये सारी चीजें प्रेजेंट है. मींस अगर बाकी चीजों की बात की जाए तो उनका एटॉमिक साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम होती है. बट ऑक्सीजन के केस में कैसा है, एटॉमिक साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, एंड एब्सेंस है इस चीज का वैकेंट डी ऑर्बिटल्स का. इसकी वजह से वी कैन सी दैट anomalous behavior of oxygen. Okay, so we have 5 points कि why it क्योंकि इस पॉइंट में हमने ये भी इंक्लूड किया कि कोवैलेंसी क्या है. ऑक्सीजन हैज अपर लिमिट ऑफ कोवैलेंसी एज 2, बाकी एलिमेंट्स क्या है 4 कोवैलेंसी शो कर रहे हैं. क्यों ये डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है? बिकॉज ऑफ स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ दिस बॉन्ड्स. बाकी मेंबर्स में क्या है उसका उल्टा लिखना. ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लो. एलोट्रोप्स, तो एलोट्रोप्स क्या होता है? एक्चुअली जो भी कंपाउंड्स हैं हमारे एलिमेंट्स है जो भी ग्रुप 16 में, अगर एक एलिमेंट 2 टाइप के, मीन्स वी नो दैट एवरी पर्सन इज हैविंग ओनली 1 आइडेंटिटी, मीन्स वो एक ही आइडेंटिटी शो करता है. बट एलोट्रोप्स इज समथिंग लाइक इट इज हैविंग मोर देन 1 आइडेंटिटी, ऐसे आप बोल सकते. दैट मीन्स अगर हम ऑक्सीजन की केस में बात की जाए, ऑक्सीजन इज नॉट ओनली O but it is having O2 and O3 as an identity. So this O2 and O3 are the allotropes of oxygen. Means having different oxygen ही है but different way है उसका express करेगा, right? So different identity है वो oxygen की. So talking with the very first allotrope, that is talking about the allotropes of oxygen. So oxygen has 2 allotropes, that is O2 and O3. O2 is dioxygen and O3 is ozone. Okay? So ये दोनों इसके एलोट्रॉप्स हैं. ठीक है, अगर सल्फर की बात की जाए तो सल्फर के बहुत ज्यादा एलोट्रॉप्स होता है. ठीक है, एंड जो सल्फर के एलोट्रॉप्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये दोनों जो है नॉन मेटल्स है. सो दिस द एलोट्रॉप्स फॉर्म बाय दिस 2 कंपाउंड्स आर आल्सो नॉन मेटालिक. जब मैंने आप लोगों को सारे एलिमेंट्स बताए तो मैंने मेंबर्स के साथ आप लोगों को जस्ट इसी लेक्चर में बताया है कि मेटल कौन से एलिमेंट्स मेटल की प्रॉपर्टी शो करे, कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल की प्रॉपर्टी एंड मेटलॉइड्स की शो करे. सो दिस 2 आर नॉन मेटल्स. सो इनके जो एलोट्रॉप्स है वो भी नॉन मेटालिक है. ओके, फिर सेलेनियम की बात की जाए, दैट इज Fe की बात करते हैं. Fe के पास सिर्फ 2 एलोट्रॉप होते हैं. एक रेड कलर फॉर्मेशन होता है एंड एक ग्रे कलर फॉर्मेशन होता है. दिस रेड वन इज नॉन मेटालिक इन नेचर, whereas दिस ग्रे इज मेटालिक. ये मेटालिक है एंड दिस इज नॉन मेटालिक इन नेचर. सो Fe, दैट इज सेलेनियम, इसके 2 एलोट्रॉप्स है. ओके, टेलरियम की बात की जाए, दैट इज Te. तो टेलरियम के भी 2 एलोट्रॉप्स है. वन इज क्रिस्टलाइन एंड वन इज amorphous. Okay, crystalline and amorphous. I hope आप लोगों को पता होगा कि crystalline क्या है, amorphous क्या है.
crystalline is crystal shaped, amorphous means fine powder. Chalk को अगर ले लोगे आप तो chalk का powder बनाना is amorphous. Okay, chalk powder is amorphous. Sugar is in crystalline form. So tellurium में भी दो टाइप है, one is crystalline form and one is amorphous. Okay. अगर पोलोनियम की बात की जाए तो it is also having two types of this. One is alpha and one is beta. So polonium shows two type of allotropes, which is alpha polonium and beta polonium, and these both are metallic in nature. Okay, ये दोनों क्या है, metallic है. ठीक है, तो ये है अगर सल्फर के सिर्फ अकेले आप सल्फर के, मैंने यहाँ पर लिखा है सल्फर इज हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट मेटल allotropes. ओके, बट विच allotrop? तो बहुत सारे होते हैं. पहली बात तो सल्फर के पास मेटालिक, बट हम कुछ ही सब स्टडी करते हैं. दैट इज रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर, सल्फर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोम्बिक सल्फर. फिर उसके बाद मोनोक्लिनिक सल्फर, दैट इज बीटा सल्फर. मोनोक्लिनिक, ठीक है. और बाकी के जो भी एलोट्रॉप्स है सल्फर के वो भी इंपॉर्टेंट है, बट दिस टू आर द मेजर वन, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर. ओके, ऑक्सीजन O2 where we use O2 to inhale. ओजोन O3, हम बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स या फिर अल्केन्स एंड अल्काइंस के रिएक्शन में इसको यूज करते हैं. इवन इन द बेंजीन रिएक्शन आल्सो वी यूज O3. ओके, ओजोन रिएक्शंस. सल्फर के दो है, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, which is oxygen and sulfur. Both the allotropes, they are forming as non-metallic. Selenium is showing two types of allotrope. One is red selenium and second one is grey. Red selenium is non-metallic in nature, whereas grey one is in metallic nature. Tellurium is showing crystalline and amorphous allotropes, means one type is crystal part and एक part आता है जो powdery form होता है, totally amorphous. Polonium is showing alpha polonium and beta polonium. Okay, and this both alpha and beta are metallic in nature. So ये चीजें आपको ध्यान में रखना. This was all about the allotropes. Allotropes means a single element which is showing different identity, different thing. Okay, एक ही element है but उसके दो faces है, एक O2 है एक O3 है. A person having double face. Okay, so वैसे हर एक के केस में यहाँ पे हम दो ही स्टडी करें, बट इफ यू गो फॉर हायर स्टडीज यू कैन चेक दैट बहुत सारे आपको एलोट्रॉप्स दिख सकते हैं. बट फॉर योर बोर्ड पोर्शन एंड फॉर योर एंट्रेंस पोर्शन, दिस बेसिक कंसेप्ट यू शुड नो. ओके, नोट डाउन विद दिस. If you want a proper sentence formation, then you can get this contained on page number 146 of your textbook, that is 7.7. Okay, there you can get a allotrop and there you can have this contained in the written form. Over here I have just shown you the keywords, just highlighting points मैंने दिखाया है. लॉन्ग सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं दी है. आपको लॉन्ग सेंटेंस फॉर्मेशन स्टडी करना तो यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट साइड. ओके.